ہمارا بھروسہ، ایمان، وشواس خدا پر کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ کس طرح سے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ How do we express our faith in God? یہاں پر لکھا ہے Trust in the Lord and do good. خدا پر ایمان رکھ، خدا پر توکل کر اور نیکی کر۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں۔ We do good. بائبل میں لکھا ہے کہ بدی کے بدلے کسی سے بدی نہ کرو۔ Don't do evil in spite of evil. بلکہ لکھا ہے کہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، pray for your enemies۔ اور اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا۔ یہی بات یہ اس داؤد جو نبی تھا، he was a musician, چیف میوزیشین، اس نے بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے، اور داؤد was a mighty warrior، بہت بڑا ایک سورما تھا، but he was a psalmist، وہ لکھتا تھا، زبور لکھتا تھا، بڑے اچھے میوزک اس نے کمپوز کیے، آج ہم اس کے زبور گاتے ہیں۔ سو یہاں پر لکھا ہے کہ ٹرسٹ ان the Lord and do good۔ کس طرح سے آپ بتاؤ گے دنیا کو کیا ہے ٹرسٹ ان گاڈ؟ سارے لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، بٹ یور ایکشن کانٹرڈکٹس یور فیتھ۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، کیونکہ خدا تو کہتا ہے کہ اچھے کام کر، نیکی کر، ٹرسٹ ان the Lord and do good۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے ملک میں آباد رہ، dwell in the land، اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ اب یہ لفظ یہاں پر جو آیا ہے dwell in the land and thou shall be fed، پرورش پانا، what is that؟ لفظ جو ہبرو لینگویج کا ہے وہ ہے روحی، which means shepherd، چرواہا، چوپان۔ جیسے خدا کا بندہ داؤد، یہی داؤد جو کہ زبور 37 لکھ رہا ہے، he wrote Psalm 23، جو کہ ہم نے ایک پروگرام میں اس کے بارے میں دیکھا تھا، Psalm 23 کے بارے میں، کہ داؤد he was a king، اور داؤد اتنا امیر کنگ تھا، he was one of the most richest person in the world۔ اس کے جیسا بادشاہ آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ اس کا بیٹا سلیمان، جس کو سب لوگ مانتے ہیں، سلیمان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے لے کر افریقہ تک اس کی حکومت تھی، اور اس کے زمانے میں سونا اور چاندی زمین پر پتھروں کی مانند پڑے ہوتے تھے، اور کوئی اس کو اٹھاتا نہیں تھا، because his people were so rich۔ کنگ سولومن۔ اور یہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ داؤد واز اے کنگ، وہ بادشاہ تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں تو ایک بھیڑ ہوں، مائی شیپرڈ از گاڈ۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ کس طرح ہم ملک میں آباد رہیں گے؟ ہاؤ ٹو ڈویل ان دا لینڈ اینڈ بی فیڈ۔ کون اس ملک میں جہاں پر آپ ہیں، کون آپ کو کھلائے گا؟ کون آپ کو کام دے گا؟ کون آپ کو جاب دے گا؟ خدا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اکانومی خراب ہے، جاب لیس ہیں لوگ، کیا کریں، کہاں جائیں؟ خدا کے پاس آ جائیں۔ لکھا ہے کہ ٹرسٹ ان the Lord and do good۔ اگر حالات خراب ہیں، دوسرا کوئی شخص خراب ہے، آپ خراب نہیں ہو۔ اگر دوسرا آدمی آپ سے برائی کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو اس کے بدلے میں اس کو گالیاں نہیں دینی۔ اگر کوئی تمہیں دکھ دے رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے اس کو دکھ نہیں دینا۔ آپ نے بدی کے اوپر غالب کیسے آنا ہے؟ اچھائی کر کے۔ ٹرسٹ ان the Lord and do good۔ اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، دوسروں سے پیار کریں، اپنے خاندان سے پیار کریں، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے پیار کریں۔ ٹرسٹ ان the land and do good۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اچھا چرواہا ہے۔ ہاؤ یو شوڈ بی فیڈ۔ خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو اچھے کھانے کھلانا جانتا ہے۔ ہی از اے گڈ شیپرڈ۔ سو آج جب ہم اس دنیا میں ہیں، اس زمین پر ہیں، ہمیں اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرسٹ ان the Lord، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بے شک میرے پاس کھانا نہیں، آج میرے پاس جاب نہیں، I will trust in the Lord، خدا مہیا کرے گا۔
बिकॉज ही जहावा जायरा, वो मुहैया करने वाला खुदा है। आइए दुआ करते हैं कि खुदा आपको मुहैया करे, आपकी ज़रूरतों को पूरे करे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सेगमेंट के लिए जो आज हमने किया है। तेरा कलाम कहता है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ड्वेल इन द लैंड एंड डू गुड। तेरे लोग खुदावंद जो इस वक्त मुश्किलों में हैं, उनके फाइनेंसिस प्रॉब्लम है, खुदा उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास अपने बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने मॉर्गेजेस के पैसे नहीं हैं, ओ खुदा उनके फैमिली के लिए फूड नहीं है, लेकिन तू शेपर्ड है, गुड शेपर्ड है, तू मुहैया कर। जिस तरह चरवाहा अपनी भेड़ों को मुहैया करता है, तो अपने इन लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मुहैया कर। अपने फरिश्तों को भेज, सुपर नेचुरल तौर से इनके सारे बिल्स पे हो जाएं, ओ इनके डेप्ट्स खत्म हो जाएं। आई कैंसल एवरी डेप्ट विच इज ऑन योर लाइफ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ खुदा इनके डेप्ट्स कैंसिल कर देते हैं और इनको अच्छी जॉब्स दे, इनको प्रमोशंस अता कर, रिबेट्स अता कर, बोनसेस अता कर, चेक्स इन द मेल अता कर, ताकि तेरे लोग तेरी भलाई, तेरी नेकी दूसरों को बता सकें कि खुदावंद ने मुझे इस ज़मीन पर बरकत दी है, खुदावंद मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। यीशु के नाम में आमीन। और अब पेश है खुशी की खबर। इसे यहाँ पास्टर पीटर के क्रिस्टोफर पेश करते हैं। आज हमें पास्टर साहिब होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा के विषय में कुछ चंद बातें बतलाएंगे। लीजिए देखिए। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुशी की खबर के एक नए प्रोग्राम के साथ आज आपके सामने हम लोग हाजिर हैं। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। हमें आपके फ़ीडबैक के लिए भी आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपका फ़ीडबैक हमें आ रहा है, आप खुदा उनसे बरकत पा रहे हैं। आज आइए खुदा के कलाम में से बरकत पाने के लिए हम एक और बात को देखते हैं जो कि मिलती है यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 26वीं आयत। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 26। यहाँ पर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you। सो यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, जीसस, एक वादा किया अपने फॉलोअर्स से, आपसे, मुझसे, सबसे। क्योंकि जब जीसस इस दुनिया में थे सब लोग उनके पीछे जाते थे, बीमार, कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, बहरे, और सब लोग शिफा पाते थे। जिनके पास खाना नहीं होता था, जीसस ने 2 ऐसे मौजज़े किए। 5000 से ज़्यादा क्राउड था, 15,000 का क्राउड था, सिर्फ 2 रोटियां 5 मछलियाँ थी, 5 रोटियां 2 मछलियाँ थी। 15,000 के क्राउड को वो डिस्ट्रीब्यूट की और फिर भी बच गए। फिर नेक्स्ट टाइम 4000 से ज़्यादा लोग थे, फिर थोड़े से 7 रोटियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब लोगों ने खाया, फिर भी बच गई 7 टोकरियाँ। पहले में 12 टोकरियाँ बची थी। सो यीशु मसीह के पीछे लोग जाते थे बिकॉज ही वॉज ब्लेसिंग देम, लोग उससे खुश होते थे। और इसलिए कि यीशु मसीह एक आम शख्स था, वो आम लोगों के घरों में जाता था, वो मगरूर नहीं था, वो प्यार करने वाला शख्स था। लोग अपने बच्चों को उनके पास लाते थे, बच्चे छोटे उनकी गोदी में बैठा करते थे। अपने शागिर्दों के साथ वो प्यार करते थे, अपनी माँ को प्यार करते थे, मैरी को, अपने शागिर्दों को प्यार करते थे, और सबको प्यार करते हैं। आज भी सबको प्यार करते हैं, आपको भी प्यार करते हैं। और जीसस का लव जो है वो अनकंडीशनल लव है। वो इस बात को नहीं देखता कि ये शख्स जो है ये क्रिश्चियन नहीं है, सो इसको मैं प्यार नहीं करूँगा। जीसस का लव अनकंडीशनल है, वो सबको प्यार करता है। खुदा प्यार है, हमने एक प्रोग्राम में देखा था, खुदा मोहब्बत है, सबको प्यार करता है। खुदा जड़ा वो सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करता है। ਤੁਹਾਡਾ कोई भी मज़हब है, किसी भी मज़हब नाल ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक है, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने वादा किया कि मैं अपने बाद तुम्हें एक हेल्पर दूंगा। उस हेल्पर का नाम है होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दस, पवित्र आत्मा।
और ग्रीक में इस हेल्पर को कहा जाता है, ग्रीक जो लैंग्वेज है जिसमें बाइबल लिखी गई है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया है, कुछ बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट की अरामिक में लिखी गई हैं, जो कि डैनियल की बुक है, जो कि कैप्टिविटी का टाइम था, जब बनी इसराइल लोग बेबीलोन के किंगडम में और पर्शियन किंगडम में दे वर कैप्टिव्स, जेल में थे, वहाँ पर कैद में थे, उनकी गुलामी में थे, उस वक़्त की किताबें। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया क्योंकि उस वक़्त की लैंग्वेज ग्रीक थी, रोमन एम्पायर ने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा किया हुआ था। सो हिब्रू में ग्रीक में पैराक्लेट या फारक्लेट लफ्ज़ है एक, जिसका मतलब है हेल्पर, अनदर हेल्पर सेम लाइक जीसस, क्योंकि उनको पता था मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे बाद मिरेकल्स कौन करेगा। होली स्पिरिट इज द पर्सन, बाप और बेटा और रूह कुदस, ये हमारे क्रिश्चियनिटी के 3 जो अकानीम हैं जिन पर क्रिश्चियनिटी का इन्हिसार है, बाप और बेटा और रूह कुदस। सो द थर्ड पर्सन इन ट्रिनिटी होली स्पिरिट, उसके लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ पैराक्लेट, PARACLETE। आपने स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, अगर आपने एक भी स्पेलिंग मिस कर दिया पैराक्लेट में से तो ये लफ्ज़ कुछ और बन जाएगा। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एनी हाउ। सो हेल्पर इन द न्यू टेस्टामेंट ग्रीक इज पैराक्लेट। द वर्ड, ये लफ्ज़ जो है, हैज़ मैनी मीनिंग्स, इसके बहुत सारे अल्फाज हैं, बट लोग आज तक यही समझते हैं होली स्पिरिट जो है वो सिर्फ हेल्पर है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रीक आर्मी में, दिस वर्ड मीन्स समवन हु कवर्स योर बैक। जैसे हम ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी चलाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है, देख नहीं सकते, इस तरफ से नजर नहीं आती, तो होली स्पिरिट इज दैट पर्सन, इज दैट स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा वो रूह है जो आपकी बैक साइड को कवर करता है। जब ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक आर्मी में ऐसा होता था, जब सोल्जर्स सामने जाते थे, फाइट करते थे, तो यू कैन सी इन द फ्रंट, आप सीधा देख सकते, पीछे नहीं देख सकते, लेकिन एक और सोल्जर उसके पीछे खड़ा होता था जो पीछे की फोर्सेस से लड़ता था, दूसरा सोल्जर आगे की फोर्सेस से लड़ता था, एंड द बैक वन वाज कॉल्ड पैराक्लेट, जो पीछे की आपकी ब्लाइंड साइड को कवर कर सके, ताकि पीछे से आपके ऊपर कोई स्टैबिंग ना कर दे। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में देखेंगे जो रोमन सोल्जर्स था उसका यूनिफॉर्म क्या हुआ करता था, क्योंकि बाइबल में उसके यूनिफॉर्म के बारे में लिखा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में लिखा है कि वी हैव टू बी गार्डेड बाय द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर करनी है, किस तरह हम शैतान से, दुष्ट आत्माओं से बच सकते हैं, बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों से। सो होली स्पिरिट जो है ये पवित्र आत्मा है, पाकरू है, इसके बारे में लिखा है कि ये आपकी बैक साइड को कवर करती है, आपको बचाती है, मुश्किलों से बचाता है होली स्पिरिट। और ये पैटर्न जो है जंग में इस्तेमाल हुआ करता था, जब रोमन सोल्जर्स जंग पर जाया करते थे। सो आज आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूं, अनदर कंफर्टर, एक अदर हेल्पर जो है पैराक्लेट, जो कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और लिखा है कि मैं तो चला जाता हूँ, इसी 14 चैप्टर जॉन गॉस्पल में यीशु मसीह ने कहा है, ही हैज़ गिवन यू पैराक्लेट, जो आपको आपके साथ साथ चलेगा, गो अलॉन्ग विद यू, ਤੁਹਾਡੇ नाल जाएगा। लेकिन आपने होली स्पिरिट की बात को मानना है, आपने होली स्पिरिट को रंजीदा नहीं करना, उसको गुस्सा नहीं दिलाना, अपने बुरे कामों से उसको गुस्सा नहीं दिलाना, उसको गम में नहीं डाल देना। लिखा है बाइबल में, डू नॉट ग्रीव हिम। जब हम गलत काम करते हैं तो खुदा को दुख होता है, होली स्पिरिट को दुख होता है। आज होली स्पिरिट आपके दिलों के ऊपर जो है वो कंफर्ट लाए, ताकि जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, होली स्पिरिट आपके रूम में भी है, आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम को देखते रहिए। इस प्रोग्राम के एंड पे जो ईमेल आएगी उससे आप ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया।